37 people are dead and 36 people are unaccounted for and still missing out in the Arabian Sea after the devastation of Cyclone Tauktae sent at least 3 barges adrift, including one completely sinking. The Indian Navy and Coast Guard's round-the-clock operations are underway now for the 3rd consecutive day to find 36 persons missing, who were all on board one single barge called Barge P305, which sank in the Arabian Sea because of the strength of Cyclone Tauktae 2 days ago. Battling extreme weather, the Navy has rescued 188 people so far and recovered, tragically, 37 bodies from the sea. Warship INS Kolkata arrived in Mumbai carrying survivors and the remains of those who didn't make it, while INS Kochi, another destroyer, has rejoined the search and rescue operations as we speak. Indian Navy ships have worked through the night using searchlights to trace any movement in the pitch-dark Arabian Sea. Meanwhile, the Maharashtra Minister Nawab Malik has said that the Indian Met Department gave warnings, but the Oil and Natural Gas Corporation, or ONGC, did not pay heed to remove the barges in time. On the other hand, Congress leader Sachin Sawant has demanded accountability and the resignation of Petroleum Minister Dharmendra Pradhan. Well, these are the big questions that we're asking on India today, with 37 lives lost and 36 people still missing there. Here are the questions that we ask. Why was this particular barge that sank not evacuated before the cyclone? Question 2. Was a cyclone warning ignored by ONGC? Why did they not take enough precautions with so many people on board at sea? Number 3. Who cleared such a large number of crew to remain at sea during a cyclone warning? And has negligence resulted in over 35 deaths at this time and probably counting? And will an inquiry post this entire disaster fix, blame and punish those responsible? And last but not least, is the negligence also risking the lives of our Navy and Coast Guard heroes? They're out there in their helicopters, precariously hovering over the surface of the water, hunting for people in pitch darkness. Aren't they risking their lives as well, thanks to the negligence of a few? So those are the questions that we are asking at this point of time. Very privileged here on India Today to be joined by Commander Deepak Dewan. He is an Indian Navy Sea King pilot joining us live from Mumbai. He has rescued many people both yesterday and today, and with him is Master Chief Flight Diver Prahlad. He's a flight diver, a combat diver of the Navy who goes into the water to recover those who are lost at sea. Commander Dewan, coming to you first, sir. Can you tell us what this experience was like, actually going out and doing these operations at a time when the weather is already so bad? The operation was intensive as every minute was critical. Survivors were in water for more than 15 to 20 hours with sea swell of about 5 to 7 meters. We had to plan and execute our flying in a manner to ensure that round-the-clock helicopters are available in the area. Commander, what are the challenges? What are the challenges of undertaking operations in these conditions? The weather conditions in which existed were marginal, making the mission more demanding. The area was approximately 80 kilometers from Mumbai, and transiting through area in such a weather required accuracy and precision. In the area, locating the survivor was a difficult task as the visibility was very low. To recover the survivor, the helicopter has to be brought to hover with waves up to 5 to 7 meters and no visual cues. Precise hovering on the top of the survivor was a Herculean task. The decision to lower the diver in such adverse condition to recover the survivor was challenging. Commander Dewan, what are the lessons that you've taken from this particular incident? This was a different kind of situation. The Indian Navy has conducted many such operations before. Were things any different this time? What were the lessons you took away from it? The foremost lesson is that Mother Nature should be respected and valued. Another important lesson is that during such a catastrophe, a joint operation with ships and helicopters simultaneously is the only way to save maximum number of lives. फ्लाइट डाइवर प्रसाद भी हमारे साथ हैं अभी। प्रसाद जी,
वो पानी में आप जाते हैं, ये जो क्रू और सर्वाइवर्स हैं उनको रेस्क्यू करने में, वो कैसे सर्वाइवर को रेस्क्यू करते हैं आप पानी के अंदर जाके? ऐसी कंडीशन में क्या है, जब सी स्टेट भी इतनी डिफिकल्ट थी कि सी वेव जो है 5 से 7 मीटर ऊंची उठ रही थी, हवा की कंडीशन भी इतनी थी, 70 से 80 किलोमीटर ऊपर से बारिश हो रही थी, नील विजिबिलिटी थी। ऐसे में सर्वाइवर क्या है पिछले 15 से 20 घंटे पानी में था, वो उनके थक जाते हैं, बॉडी हाथ और स्विमिंग और फ्लोटिंग करते हुए मॉरल डाउन हो जाता है। जो बंदे स्पेशली ग्रुप से बिछड़ कर दूर चले गए, ड्रिफ्ट हो गए ड्यू टू द स्वेल और विंड, उनका मोरल ज़्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि जो बंदे ग्रुप में है उनका तो क्या है एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहते हैं, सांस बढ़ाते रहते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया था, जो बंदे सबसे दूर गए हैं सबसे पहले उनको पिकअप किया जाए, ताकि जो और बंदे विजिबल नहीं है शिप को, उनका भी मोरल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों की जान बचाई जा सके। तो ऐसे में सर क्या होता है, जब हम सर्वाइवर को बचाने के लिए जाते हैं, कोई भी सर्वाइवर जो पिछले इतने टाइम से संघर्ष कर रहा है पानी में, तो जाते ही अपने रेस्क्यूअर के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे में हमें डाइविंग स्कूल में और डाइविंग ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि ऐसी विषम और कठिन परिस्थितियों में सर्वाइवर को कैसे बचाना है, ताकि सर्वाइवर भी पैनिक ना हो और उसकी जान बचाई जा सके। ऐसे में हम क्या करते हैं कि उसके सामने से अप्रोच बनाते हैं और जैसे उसके नज़दीक जाते हैं अंडर वाटर डाइव करते हैं एंड उसके पीछे निकलते हैं हम जाकर। उसके पीछे निकलने के बाद हम उसका चिन को थोड़ा लिफ्ट अप करते हैं ताकि उसको ब्रीथ मिले, तो बंदा कंफर्टेबल हो जाता है एंड वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। उसके बाद में विंच ऑपरेटर को इंडिकेट करते हैं, विंच ऑपरेटर रेस्क्यू स्ट्रोक लोअर करेगा, देन उसको रेस्क्यू स्ट्रोक पहना के हम इंडिकेट करते हैं। प्रसाद जी, सर्वाइवर्स की क्या इमोशनल कंडीशन थी जब आप रेस्क्यू करते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके आते हैं हेलीकॉप्टर में, तो उनका इमोशनल जो कंडीशन है उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। सर जैसा कि इस कंडीशन में जो भी हमने रेस्क्यू किया है, इसमें बंदे पिछले 15 से 20 घंटे पानी में सर्वाइव किया, उनके पास एंड स्पेशली रात की जो कंडीशन थी कि उनको ना कुछ विजिबल क्यों था, ना कुछ कर सकते थे, खाली पानी में फ्लोट और स्विम ही कर पा रहे थे। अदर देन सी वाटर उनके पास कुछ नहीं था, उनका डिहाइड्रेशन भी शुरू हो गया था, बंदों की बोलने की कंडीशन कुछ भी नहीं थी। जब हमने उनको रिकवर किया तो उनकी मनोदशा से ही अंदाजा लग रहा था कि वे मतलब बहुत खुश थे और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनको दूसरी ज़िंदगी मिल गई। उसके बाद में उन्होंने पानी पिलाया, थोड़ा एयरक्राफ्ट में बोला रेस्ट करो आप। उसके बाद में जब थोड़े रिकवर हुए, उसके बाद में एक बंदे ने खुद बताया कि मैं तो अपनी होप ही छोड़ चुका था, क्योंकि वो बंदा अपने जो ग्रुप मेंबर थे और जो उसके साथ में दूसरे सर्वाइवर थे उनसे ड्रिफ्ट हो गए, वो कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर चला गया था। वो बोल रहा था कि मैं तो ऐसे छोड़ चुका था कि शायद मुझे भी कोई पिकअप करने आएगा। I salute the both of you, Commander Dewan and Master Chief Prasad. Please stay safe. The country is praying for those out there, but they are also saluting and praying for you and your safety as you go out there in this race against time to rescue more and more Indian citizens. Thank you very much for your service, and thank you for giving us your precious time at such a time with taking my questions here on India Today. Thank you very much. We also have joining us now live from Maharashtra, one of the survivors of this disaster. We have with us Avinash Adake, who was a fireman on board the GAL constructor barge from which many people were also rescued. Avinash ji, क्या हुआ था जब वो साइक्लोन आया था? क्या आप बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था और आप कैसे बचाए गए थे? सर फर्स्ट तो हमारे साथ हम 16 को 7:30 में पहुंचे थे बॉम्बे, और बॉम्बे एयरफील्ड में पोर्ट साइड में हमको परमिशन नहीं मिला था, इसलिए हमने अलीबाग साइड में फोर्थ एंकर डाल के हम वहीं पे स्टैंड बाय थे। तो उधर उस टाइम में जब 16 को नाइट को जब स्टार्ट हुआ, साइक्लोन वेदर खराब हुआ, उस टाइम वो पूरा नाइट तो हमारा सही से गया। वो नाइट में कुछ उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हमको लगा कि शायद हम अभी सिक्योर हो गए, सेफ हो गए, हम साइक्लोन से बच गए। हमें ऐसा मालूम था कि जैसे कि अभी सुबह 17 को 12 तक हमारा वेदर पूरा क्लियर आउट हो जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन सर कुछ उल्टा हो गया, और ज्यादा मतलब और बहुत स्पीड से वेदर खराब हो गया। वो 120 नॉटिकल्स के विंग स्पीड बढ़ गया। उस टाइम में हमारे पूरा बार्ज का चारों एंकर जो था हमारा कट हो चुका था और हमारा बार्ज पूरा ही कंट्रोल के बाहर गया था। उस टाइम में हमारे पास मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, बार्ज पूरा कंट्रोल के बाहर था। तो हम इंडियन कोस्ट गार्ड को पहले अप्रोच करने स्टार्ट कर दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड जो भी हमें हेल्प मिले उनसे हम कांटेक्ट कर रहे थे। तो हमें इंडियन कोस्ट गार्ड से तुरंत हमको एक टग बोट भेज दिया, तो वो हमको कंटिन्यू मतलब अप्रोच करता रहता था। हम आगे रहते थे, हम बहुत स्पीड से ही आगे बढ़ रहे थे। अच्छा हुआ मतलब नसीब से हमारा बार्ज कहीं पे कोई रीफ या कहीं बोट या कहीं पत्थर या कहीं पे क्रैश नहीं हुआ सर।
हम सही से मतलब उधर से जा रहे थे, पास हो रहे थे, वो उस वेदर से खराब उसी माहौल से हम गुजरात की तरफ बढ़ रहे थे। उसी में सर हमारे हमारे बाज का जी। डिस्चार्ज हुआ, नीचे होल हो गया, उसमें पानी भरने लगा। बाद में इंजन रूम में पूरा पानी आ गया, तो फिर हम था कि अभी बाहर से हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो पानी बढ़ रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। तो उसी टाइम में हमने कुछ हम उसी विंग स्पीड में हमारा एक फायर वाटर पंप था, उसे कनेक्ट करके हमारे जो एक टीम था, टीम में थे हमारे रिगर फॉरमैन, जिसका मैं नाम आपको बताना चाहूंगा, सोनी फॉरमैन। हमारे दास ऑफिसर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में से मैं सर जॉब करता हूँ, फायर डिपार्टमेंट से हूँ। तो हमारे इस टीम से सोनी रिगर फॉरमैन, उन्होंने हमको एक आशा ऐसे दी कि कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। तो उन्होंने स्टार्ट किया, वो उसी विंग स्पीड में हमने वो पंप उठाया और नीचे इंजन रूम में हमने डाल के वो पानी निकालना स्टार्ट किया। तब जाके सर हम स्टेबल हो गए, हमारा से बच गया। फिर हम इससे आगे बढ़ते बढ़ते चले गए और फिर पालघर साइड में सर 2:30 को टाइम पे हम कलवा बीच के पास में हमारा बार जाके रुक गया और उसमें अटक गया। उधर हम सब मतलब सेफली हम उधर खड़े रह गए, मतलब हमारा जो होल था, मतलब पानी था, वो भी आना कम हो गया और हम खड़े रह गए। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का अप्रोचिंग स्टार्ट था। सुबह जाके हमें 18 को सुबह जाकर हमको सर हेल्प आया, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, सभी ने हमसे कांटेक्ट किया सर। उस टाइम में हमको चॉपर्स निकाल गया। अविनाश जी, बहुत खुशी होती है, आई फील वेरी हैप्पी, बहुत खुशी होती है कि आप सुरक्षित हैं, आप सर्वाइव किए हैं इस डिजास्टर में। एक दूसरा बाज भी है अभी, पापा 305 ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई, जिसमें 37 पीपल मर चुके हैं ट्रेजिकली, और 36 people are still out there at sea. But I wish you well. मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने सर्वाइव किया इस ट्रेजेडी में, और and we would like to speak to you again in the future. But thank you for joining us, Avinash ji, and giving us your survival tale. We will continue to tell the tales of the survivors, the heroes, and those who've lost loved ones in this developing and continuing story, and ask the big questions here on India Today. Well, that's a wrap on 5 Live. Keep watching India Today, 6 p.m. prime.